Okay, students, today I am going to start the very first chapter of your syllabus for ICSE 9th class. This is the basic concept or introduction about the object oriented programming language. Object oriented object oriented programming. Object oriented programming. So, what is object oriented programming? So, before going further about object oriented programming, let first discuss what is programming language actually. Programming language is a language of computer which is used to design the program, and the set of programs are different, so many programs construct a software. So, basically in software designing we have to write programs. So, to write program in computer system we have to use programming language. Is it clear? So, programming language is a language of computer which is used to write programs. Is it clear? Okay. So, there are different types of programming language. The first was machine language. The first one was machine language. So, it was a language of computer which is written in the form of only 0 and 1, including 0 and 1 only. All the instructions are written in 0 and 1 form. So, it was very difficult for user to write programs, always for the programmers also. Then the second one was assembly language. Assembly language is also called mnemonic language or use mnemonic code. It also use alphabets and binary numbers. 0 and 1 is called binary number. 0 and 1. Bi means 2. So, only the number system which is having only 2 digits for all types of numbers, it is called binary number. So, 0 and 1 is called the binary digits, 0 and 1. Alphabets and binary numbers. It was also little difficult. It is easier than the machine language, but it is also very difficult to write the program. Then the next is high level language. So, high level language is a English like language. It is a language in which all the programs written in English words, using English word in sentences, using English words, simple English words. So, it was as simpler as compared to previous two languages, machine and assembly language. It was simpler than machine and assembly language which is used to write programs. Then in high level language there are two basic language. The first is in high level language we have two languages. The first one was
procedural language, and second one was object oriented language. Object oriented object oriented language. So these are two types of high level language. One was procedural language. It is top to bottom approach. Top to bottom approach. It means first we have to write the program according to the we write the program according to the problem, but in object oriented programming it is bottom up approach programming language. Bottom up approach. It use bottom up approach. It means first of all we have to understand the problem and divide the problem in different parts, and for different part we have different objects. So object oriented language is a type of high level language, a type of high level programming language. So ये आपको हेल्प करेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली है क्या. तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लिए. देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों के पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज में भी प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ गया. ठीक, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is falls under category of high level language. So object oriented programming language is a programming methodology. Now let's discuss in details what is object oriented language. Let's discuss it. Object oriented language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेट डिस्कस इट. अभी आप लोगों ने पहले बेसिक समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कितने टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. उस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअली है क्या चीज़. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और वी से इट विल बी बेटर टू राइट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Programming language. So object oriented programming language is a programming methodology. It is a programming methodology. It is a programming methodology to design program using object and class. In object oriented programming language we design the class using object and class. So it is a methodology of programming. It means that one of the method of programming in which all the program is designed with the help of object and class. To understand object oriented programming language we have to understand the basic building blocks, or we can say basic concept, basic features of object oriented programming language to understand the programming language in details. So let's understand. Is it clear? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आता है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी टू डिज़ाइन प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास. ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट और क्लास की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. क्लियर?
Now we have to study object and class. Object and class. Object and class. So what is object and what is class? First let us start object. Object is a real world entity, anything in our real world which entity means which we can touch, see or feel is called object. So any real world entity which has some states, behavior or feature and which can perform some action or which can perform some function. So anything can be said to be object. For example, let a mobile phone. In object, I have said that it has a state and it has function. State and function, or it can perform some action, function or action we can say. For example, let mobile phone. State it is a feature, also called feature or characteristics. Characteristics, state, feature, characteristics, everything is represent the same thing. Function or action or behavior, we can also say behavior. So function, action and behavior, all these things stands for same meaning. So object is having state, features or characteristics and it can perform some function or can do some action or it can represent some behavior. For example, take the example of very well known things around us is mobile phone. So mobile phone has features. It has a model number, price, color. So these are the state or features of the mobile phone. These are the model number, price and color. These are the features of the mobile phone, and what action can we can perform? We can make a call, we can watch video, audio, message, etc. All these functions can be performed with the help of mobile phone. Is it clear? So mobile can said to be an object. So we in object-oriented programming, actually the whole program is divided in object and classes. Now let's understand what is class. Class is a blueprint of object. Blueprint of object, or it is also called object factory. Is it also called object factory? Class is called blueprint of object or object factory. Actually, whatever object we create in our program, first of all we have to define its features and whatever function will be used in object with the help of class. So class is object factory. It means an object is instance of class. So without class, the object cannot exist, or we cannot imagine any object without defining the class. ऑब्जेक्ट और क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास से मिलकर बनता है, ठीक है, और क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट कैसा होगा इसका मतलब है कि उसमें क्या फीचर्स होंगे और क्या फंक्शन वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, यानी किस तरीके का बिहेवियर होगा ऑब्जेक्ट का,
ऑल थिंग्स डिफाइंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्लास। इज इट क्लियर? तो सभी कुछ कहाँ पे डिफाइन होता है? क्लास के अंदर होता है। इसके क्लास को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट इसी से बनता है, क्लास के डेफिनेशन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट, एक क्लास के डेफिनेशन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैप को ले लें, एक मैप हम लोग लेते हैं। मैप क्या है? एक तरीके से मैप बनता है, कोई भी पर्सन अगर को मैप बनवाना है तो मैप अगर गया, एक पर्टिकुलर मैप बन गया किसी हाउस का, और अगर उसको 3 to 4 पर्सन, अब मैप में क्या होता है, उसका जो भी होगा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा हाउस का। अब पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों ने सेम मैप यूज किया, तो दोनों का जो हाउस होगा, दोनों का जो होम होगा, वो एक ही मैप से बना हुआ, सेम मैप यूज करके बना है, बट डायमेंशन चेंज हो सकता है। डायमेंशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर किसी ने इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट में अगर अपना बनाया है और इन्होंने 2000 स्क्वायर फीट में बनाया है, तो डायमेंशन चेंज होगा। इट मीन्स साइज ऑफ द रूम्स विल बी चेंज, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि मैप को हम क्या ले सकते हैं? क्लास मान सकते हैं, और ये जो हाउसेज हैं डिफरेंट बने, इनको हम क्या मान सकते हैं? ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ये जो हाउस होम 1 होम 2 बना हुआ है वो किससे बना है? एक ही मैप से बना है। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है होम 1 होम 2 का, वो एक ही क्लास से मिलके बना है, एक ही क्लास। इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है? तो उस पर क्या होगा? उनका जो फीचर्स होंगे, फीचर्स सेम होंगे, बट उनकी वैल्यूज अलग हो जाएगी। जैसे अगर आपका एक ही मैप से 2 हाउसेस बनते हैं, तो उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेम होंगे, बट उनका डायमेंशन अलग होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस, एरिया जितना होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट में बना है, तो स्पेस ज़्यादा बड़े एरिया में बना है तो ज़्यादा बड़े स्पेस का होगा रूम्स, और अगर कम स्पेस में बना है तो छोटा छोटा रूम होगा, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। ऑब्जेक्ट में जब क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, एक क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए, उन सब में सेम फीचर्स होते हैं और सेम फंक्शन होता है, बट फीचर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है? और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट को एक ले लेते हैं हम लोग। टेक द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट एक क्लास हमने बना लिया, ठीक है? इसके अंदर हम लोगों ने जो फीचर्स है इसका, या फीचर्स हमने ले लिया नेम, रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर, और स्कॉलर आईडी ले लिया। ये आपका फीचर्स हो गया। और फंक्शन में स्टडी, प्ले। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से 2 स्टूडेंट बने, राम एंड श्याम। 2 स्टूडेंट्स आर देयर। अब यहाँ पे क्या, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 और 2। राम और श्याम ना लेकर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बल्कि इट विल बी बेटर। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ले लिया। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 के लिए नेम की वैल्यू सपोज राम, रोल नंबर 1, स्कॉलर नंबर 1401, स्टडी प्ले। स्टूडेंट 2 के लिए नेम क्या हो जाएगा? सपोज नेम उनका हो गया श्याम, नेम हो गया श्याम, रोल नंबर 2 और स्कॉलर आईडी 1802। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टूडेंट राम, स्टूडेंट की क्लास है, उससे 2 स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट 1 एंड 2। फर्स्ट वाले का जो नेम होगा, अब स्टूडेंट जो क्लास है उस पर इतनी ही फीचर्स होगा, नेम, रोल नंबर एंड स्कॉलर आईडी। उसके अलावा कोई भी फीचर्स हम नहीं लिख सकते, बिकॉज हमने
जब क्लास डिफाइन किया था तो उसमें ही लिख दिया था कि फीचर्स में नेम, रोल नंबर और स्कॉलर आईडी यूज़ करेंगे, और स्टडी और प्ले 2 फंक्शन यूज़ होगा स्टूडेंट को बिहेवियर के लिए पर्पज से, एक्शन पर्पज से। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 का जो नेम होगा वो मे बी नेम राम और रोल नंबर 1 और स्कॉलर आईडी 1401, और स्टूडेंट 2 के लिए भी नेम श्याम, रोल नंबर और स्कॉलर आईडी। तो 1 के लिए भी नेम और रोल नंबर और स्कॉलर आईडी यूज़ किया गया है फीचर्स, और 2 के लिए भी नेम और रोल नंबर और स्कॉलर आईडी फीचर यूज़ किया गया। इसके अलावा कोई भी फीचर किसी में डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब है कि बोथ राम एंड श्याम आर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट एंड बोथ आर हैविंग द सेम फीचर्स, मीन्स नेम, रोल नंबर एंड स्कॉलर नंबर, बट ऑफ डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि नेम अलग होगा, रोल नंबर अलग हो, नेम सेम भी हो सकता है तो रोल नंबर और स्कॉलर आईडी यूनिक होता है तो अलग ही होना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है। विदाउट क्लास वी कैन नॉट इमेजिन द ऑब्जेक्ट, बिना क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर सकते, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर सकते। तो पहले हमको क्लास डिफाइन करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम, कर्ली ब्रेसेस, देन फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर क्लास स्टार्ट होती है आपकी। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप्स लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप लिखते हैं। प्रिंसिपल्स में सबसे पहला आपका आता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, नेक्स्ट abstraction, फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस inheritance. These are the principles of object oriented programming, or we can say it is the basic building block of object oriented programming. इसको basic building block भी बोलते हैं, या इस pillars of object oriented programming भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? pillars of object oriented programming. फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, इसी के कॉन्सेप्ट पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, फर्स्ट इज encapsulation. Encapsulations means कैप्सूल वर्ड से आया encapsulation, डेटा या स्टेट पर जिसको बोलते हैं, और बिहेवियर और फंक्शन। डेटा और फंक्शंस को क्या करते, एक सिंगल एंटिटी में रैप करना, यानी इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड related function in a single unit is called encapsulation. It is a method, or it is a concept in which we encapsulate or wrap data and related function in a single unit, that is called the encapsulation. इसमें data और function को एक साथ combined मिला के क्या encapsulation होता है, ठीक है। wrapping of data and function in a single unit is called encapsulation. It is a process. इस इनकैप्सुलेशन में एक्चुअली डेटा और उससे जो फंक्शन, इसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन द केस
सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की सिक्योरिटी के लिए हेल्पफुल होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा है आपका, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो इसीलिए सिक्योर भी है क्योंकि इस डेटा पे कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, वो यहाँ पे जो इनकैप्सुलेट डेटा फंक्शंस है वही इस डेटा को के ऊपर वर्क कर सकता है। वर्क करने का मतलब है तो इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के हेल्प से। डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वेरिएबल के हेल्प से। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को कौन चेंज कर सकता है, कौन इनिशियलाइज कर सकता है या कौन यूज़ कर सकता है, वो वही यूज़ करेगा जो मेंबर फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास बनाते हैं तो क्लास में हम लोग पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन भी बनाते हैं, ठीक। तो कौन सा फंक्शन, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर, वही जो फंक्शन है उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको वही उसके ऊपर वर्क कर सकता है, दूसरा कोई फंक्शन वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बेनिफिट है आपका इनकैप्सुलेशन या, और ये इस तरीके से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉर द इन द सेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। इट मीन्स नो आउटसाइडर फंक्शन कैन एक्सीडेंटली चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी एक्सीडेंटल चेंजेस को भी बचाता है। गलती से कोई बाहर का वेरिएबल यानी चेंज कर सकता है। तो इसको अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात में बात करें तो कोई जो यूज़र होता है उसके अलावा कोई दूसरा अगर यूज़र है तो वो चेंजेस नहीं कर सकता सिस्टम के अंदर से। एक एडमिनिस्ट्रेटर या जो ऑथराइज्ड यूज़र है वही चेंज कर सकता है। Encapsulation, it means wrapping of data and variable, function and variable in single unit is called the encapsulation. Next is abstraction. Abstractions means providing only essential details and hiding implementation details. Implementation details. इम्प्लीमेंटेशन जो डिटेल्स होता है उसको हाइड करना। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, केवल जो ज़रूरी फीचर्स है उसको प्रोवाइड करना और बाकी फीचर्स को हाइड करके रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मेंबर एक यूज़र होता है कि यूज़र को किस लेवल, कौन सा यूज़र किस लेवल तक हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है या कोई पर्टिकुलर फीचर को कौन यूज़ कर सकता है। जैसे आपका एग्जांपल ले सकता हूँ, रिमोट कंट्रोल की बात करें हम लोग, तो रिमोट कंट्रोल में आपका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ऑप्शन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए है और डिक्रीज करने के लिए है। चैनल को आपको स्विच करने का ऑप्शन है, वी कैन स्विच चैनल, बट आपके पास बस प्लस या माइनस बटन होता है। चैनल के लिए भी प्लस माइनस जो भी बटन है चेंजेस का, आप प्रेस कर देते हो बटन, आपका चैनल चेंज होता है या वॉल्यूम चेंज हो जाता है, बट यू डोंट नो हाउ इट हैपन, ये कैसे हो गया। बेसिक रिमोट के अंदर वो फंक्शन कैसे वर्क किया इसके बारे में आपको पता नहीं है, बट आप क्या करते हैं, बस वही फीचर जो बटन के फॉर्म में आपके सामने दिख रहा है उसको आपने यूज़ कर लिया, आपका वर्क हो गया, बट यू डोंट गो इन द डिटेल हाउ इट हैपन, यानी सर्किट लेवल पे किस तरीके से वर्क हुआ उसको आपको नहीं पता है। तो यही आपका वर्क होता है, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एक अगर हम लोग बैंक की बात करें, बैंक का एग्जांपल ले लें, तो अकाउंट होल्डर जो होता है, अकाउंट होल्डर कैन चेंज पिन, चेंज एटीएम पिन, चेक बैलेंस, बट वो अकाउंट क्लोज नहीं कर सकता। अकाउंट को अगर क्लोज करना है
तो वो नहीं कर सकता, अकाउंट को ओपन करना है तो वो नहीं कर सकता, अकाउंट को वो एटीएम का पिन चेंज कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है, बट अकाउंट को क्लोज या ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी उसके पास है बट ये अथॉरिटी इसके पास नहीं है। इसका मतलब है कि ये इतनी डिटेल्स उससे हाइड है या उसके अथॉरिटी के बाहर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो हाइडिंग द सम डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स टू द यूजर इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, is called abstraction. And next is polymorphism. पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली प्रीफिक्स यूज होता है मोर देन वन के लिए, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मोर देन वन, मॉर्फ का मतलब फॉर्म। मॉर्फ का मतलब फॉर्म, poly more than one form. Polymorphism is a feature of the object-oriented programming in which a single function can perform more than one work. एक फंक्शन को एक से ज़्यादा तरीके से यूज करने को ही, एक फंक्शन का नेम सेम होगा बट उसको हम अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही इसको पॉलीमॉर्फिज्म। वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग या एक ऑपरेटर को डिफरेंट तरीके से यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन हो गया। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है, एंड एरिया ऑफ सर्कल लेना है, कैलकुलेट करना है। तो जनरली आपको क्या है, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना, बट विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन डू इट बाय हैविंग द फंक्शन नेम सेम। एरिया फंक्शन से ये वर्क हो सकता है कि एक ही एरिया फंक्शन से तीनों वर्क हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी और एरिया ऑफ सर्कल भी। अदरवाइज हमें अलग अलग एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपका नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ते हैं प्रोग्राम में, उतना प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना भी एक पर्पज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, so that in spite of using more than one function for calculating same type of or performing same type of operation, we can use a function with same name and for different purpose, and this is the purpose of polymorphism or the concept of polymorphism. अब यहाँ पे क्या होता है, एरिया फंक्शन है। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, फंक्शन इज समथिंग जिस पे हमें वैल्यू देना होता है, और वो क्या करता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट दे देता है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में एक तरीके से प्रोसीजर भी लिखना होता है कि कौन सा वर्क किस तरीके से करना है। जैसे अगर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लिखना है पूरा। और अगर यही फंक्शन है तो फंक्शन में आपको क्या करना है, केवल आपको लेंथ और ब्रेड्थ को देना है, केवल आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दे देना है। यहाँ पे हमने वैल्यू तो दिया, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ फंक्शन के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़े, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है। हमको पता नहीं कि मल्टीप्लाई किया जाता है या कैसे किया जाता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो एरिया नहीं निकाल सकते। बट हमारे पास फंक्शन क्या है, रेडीमेड फार्मूला है, हम केवल वैल्यू देते हैं लेंथ और ब्रेड्थ की, बस उस पर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, कैसे एरिया निकलेगा वो फंक्शन का वर्क है। दैट विल डन बाय फंक्शन इटसेल्फ बिकॉज फंक्शन इज बिल्ट इन फार्मूला।
तो एरिया का फ़ायदा यही होता है कि एरिया में हम लोग केवल वैल्यू देते हैं और कैसे उस वैल्यू से जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो कैसे होगा, दैट इज़ द वर्क ऑफ एरिया पर्टिकुलर फंक्शन. But in case of formula we have to provide the value as well as write the proper procedure to calculate that particular, to perform that particular operation. ठीक है. एरिया में अब यहाँ पे पता है रेक्टेंगल के एरिया में इसी को हम आर्गूमेंट बोलते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं, जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. आगे आप लोग जब पढ़ेंगे 10th वगैरह में और आगे क्लास वगैरह में जाएंगे तो आपको फंक्शन जब डिटेल में पढ़ा जाएगा तो ये आर्गूमेंट है. बस बेसिक समझ लीजिए. रेक्टेंगल में आपको क्या करना है, 2 वैल्यू देना है, लेंथ और ब्रेड्थ. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, ए बी सी. अगर हम लोग ट्राइंगल आपका ऐसा है, वैल्यू ऑफ ऑल 3 साइड्स. और सर्कल के लिए हमको क्या देना है, केवल रेडियस देना होता है. तो यहाँ पे कितने आर्गूमेंट हो गए, 2. यहाँ पे आर्गूमेंट 3, यहाँ पे 1 आर्गूमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही फंक्शन बनाएंगे एरिया. पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक ही फंक्शन बनाएंगे एरिया और इसको हम लोग आर्गूमेंट अलग अलग दे देंगे. एरिया एरिया फिर फंक्शन वही ए कॉमा बी. ए बी सी से फ़र्क नहीं पड़ता, दीज आर द प्लेस होल्डर्स. प्लेस होल्डर का मतलब जहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं. और एक फंक्शन हमने बनाया फिर से उसी नाम से एरिया, और इसमें एक ही आर्गूमेंट दे दिया आर नाम से. तो ये ए बी सी एल बी आर कुछ भी लिखे, ए बी सी सब में लिखते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे ए बी लिखते हैं, यहाँ ए बी सी लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लेस होल्डर है. अब यहाँ पे क्या है, अब अगर हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल तो हम एरिया फंक्शन को कॉल करके बस क्या करेंगे, उसको हमने लिख दिया 5 वैल्यू दे दिया. एरिया फंक्शन को कॉल किया, उसको क्या दे दिया 5. वो अपने आप समझ जाएगा कि ये वाला फंक्शन यूज़ होना है. कौन सा फंक्शन यूज़ होना है, एरिया, जिसमें सिंगल आर्गूमेंट देना, सिंगल वैल्यू देना. जैसे ही हम एरिया वाले फंक्शन को वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ा के 3 कर देंगे, 2 और 5 करेंगे, अपने आप समझ जाएगा कि ये वाला फंक्शन यूज़ होना है. तो अकॉर्डिंग टू आर्गूमेंट वो फंक्शन अपने आप क्या होता है, लोड होता है. इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा. सो दिस इज द पर्पज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट मीन्स यूजिंग द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट पर्पज. एंड नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस is a biological term also. बायोलॉजी में इनहेरिटेंस मतलब होता है एक्वायरिंग फीचर्स ऑफ पेरेंट. पेरेंट का कुछ ना कुछ फीचर्स चाइल्ड में होता है, उसी को इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बोली थी बायोलॉजी में. इनहेरिटेंस का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है. when we creating a class using already existing class. पहले से कोई क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, उसी की हेल्प से एक नया क्लास क्रिएट करना. इट मीन्स ये क्या करता है, यूजिंग द फीचर्स ऑफ सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास और एग्जिस्टिंग क्लास का कुछ फीचर्स और फंक्शंस फिर से क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, यानी यूज़ कर लेते हैं. इससे बेनिफिट क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम का जो स्टेप्स पूरा प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको लिखना नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है. इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखा हुआ है, आपको एक तरीके से रेडीमेड एक पहले से कुछ है सिस्टम और उसको यूज़ कर लिया आपने, और कुछ ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएबल्स और ऐड कर लिए और कुछ फंक्शन और ऐड कर लिए. या अगर एज इट इज़ वर्क आपका हो जा रहा है तो फिर आपका सिंपल सा एक सिंगल लाइन में आपने क्या किया कि एक पहले से जो क्लास डिफाइन किया गया है उसको पूरा फिर से उसी तरीके से दूसरी क्लास बना लिया. तो पहले से एग्जिस्टिंग किसी क्लास की हेल्प से कोई दूसरा क्लास बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं. इसमें जिस क्लास से, सपोज आपका क्लास ए है, इसके हेल्प से हम लोग अगर क्लास बी
if we create class B with the help of class A, तो class A is called parent class, it is called parent class, और इसी को हम लोग सुपर क्लास बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और इसको हम लोग बोलते हैं सब क्लास। तो क्लास जो एग्जिस्टिंग क्लास है जिसकी हेल्प से हम दूसरी क्लास बनाते हैं उसको हम लोग पेरेंट और सुपर क्लास बोलते हैं, और जो दूसरी क्लास है जिस क्लास भी उसको चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास बोला जाता है। ठीक है, सो इनहेरिटेंस आपको मिलेगा एक्चुअली 9th और 10th में, तो बस आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोग्राम नहीं है इस पर, बस इसका थ्योरेटिकल आपको पढ़ना होता है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता भी है इससे रिलेटेड। तो बेसिक ये समझना कि इनहेरिटेंस इज अ process in which we can create any class with the help of already exist any class. So आज हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, स्टार्टिंग हमने किया था कि हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए आपका आईसीएससी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, आपको जावा पढ़ना है, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके लिए जावा पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना होता है कि क्या होता है, और जावा इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET एक्सेट्रा। तो उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जिसके हेल्प से हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। देन फिर हम लोगों ने समझा कि हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरीके का लैंग्वेज होता है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज होता है, और जिसको टॉप बॉटम अप्रोच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जिसमें बॉटम अप अप्रोच होता है ये। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने फिर पढ़ा तब जाके कि अब हमें पता चला कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मेथोडोलॉजी टू डिजाइन द प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास। यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास के हेल्प से अब जब कोई भी प्रोग्राम जब हम ऑब्जेक्ट और क्लास के हेल्प से बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने समझा कि ऑब्जेक्ट और क्लास, अब हम लोग आगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक पिलर्स थे उनके बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट था आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में पढ़े। ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका अपना कोई स्टेट होता है यानी फीचर्स होता है, और जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, कोई बिहेवियर उसका होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मोबाइल फ़ोन को ले लें तो उसका मॉडल नंबर, प्राइस, कलर, दैट इज़ द फीचर ऑफ द मोबाइल नंबर। कॉल करना, वीडियो देखना, ऑडियो देखना और मैसेजिंग, ये सब उसके फंक्शंस हैं। हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हैं कुछ भी, तो वो आपका उसके फीचर्स और फंक्शन के बारे में पूछते हैं, तो वही आपका ठीक। फिर हम लोगों ने समझा कि क्लास क्या होता है। तो क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसका एक क्या होता है? डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन बनता है। वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर की फील्ड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें क्लास लिखते हैं, क्लास की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं क्लास का। तो क्लास क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फैक्ट्री ऑल्सो। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इस मीन्स उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो सारी डिफिनेशन यानी सारा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है वो क्लास के डेफिनेशन में लिखा जाता है। तो फर्स्ट वी डिफाइन क्लास, देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट क्लास डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट में मैंने बताया दो चीज़ होता है, एक फीचर्स और एक बिहेवियर और फंक्शन। फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और फंक्शन बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फीचर्स का मतलब जैसे मॉडल नंबर, कलर, प्राइस, ये सब को अगर आपको लिखना है, स्टोर करना है इनकी वैल्यू को, तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एक, और वेरिएबल का उस हिसाब से डेटा टाइप भी होगा। अगर आपको मॉडल नंबर लिखना है तो डेटा टाइप आपका इंटीजर हो सकता है। आपका अगर मोबाइल फ़ोन की कंपनी का नाम लिखना है तो उसके लिए आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा डिफरेंट। और फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कॉल का फंक्शन होगा, मैसेज का फंक्शन होगा, ऑडियो, वीडियो। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट का, यही स्टूडेंट क्लास के बारे में। स्टूडेंट क्लास में उसका फीचर नेम, रोल नंबर और स्कॉलर नंबर। अब इसको यूज़ करने के लिए या इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे हमें नेम चाहिए
तो नेम के लिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, रोल नंबर के लिए हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया, स्कॉलर आईडी के लिए भी हम लोग इंटीजर वेरिएबल लेंगे। तो फीचर्स को स्टोर करते हैं किसमें, वेरिएबल में, और जो भी आपका उसका बिहेवियर होता है उसको हम लोग फंक्शन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा। उसमें देयर आर 4 प्रिंसिपल, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इन सब से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस और टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, डेटा या स्टेट और बिहेवियर को, डेटा और उसके फंक्शंस को एक ही में बाइंड कर दिया जाता है, या रैपिंग और वेरिएबल एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मेडिसिन होती है, कई मेडिसिन और रिलेटेड, वो उन सबको एक कैप्सूल के अंदर रैप कर दिया जाता है। ऐसे ही वेरिएबल और फंक्शन को, वेरिएबल और फंक्शन को जब हम एक साथ रैप कर देते हैं एक सिंगल उस पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यानी इस वेरिएबल के ऊपर यही फंक्शन वर्क करेगा, इसके अलावा कोई बाहर का अगर फंक्शन है तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। यानी इससे बेनिफिट क्या होता है, सिक्योरिटी होती है और एक्सीडेंटल चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन किसी वेरिएबल पे एक्सीडेंटल चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन होता है उसी को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो ओनली मेंबर फंक्शन कैन वर्क ऑन द वेरिएबल, नॉट एनी आउटसाइडर। नेक्स्ट इज abstraction. It is a feature in which providing the essential details and hiding the implementation detail। मैंने रिमोट कंट्रोल का आपको एग्जांपल लिया था कि रिमोट कंट्रोल में जैसे आपके पास फीचर होता है वॉल्यूम इंक्रीज करने का और डिक्रीज, चैनल का इंक्रीज डिक्रीज, और भी फीचर्स जो होते हैं ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने का, बट वो एक्चुअल हो कैसे रहा, उसके इंटरनल प्रोसेस कैसे हो रही है उसके बारे में आपको नहीं पता होता है। तो वही आपका एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे हमने अभी बैंक का एग्जांपल लिया कि एज ए अकाउंट होल्डर आप अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, आप एटीएम का पिन चेंज कर सकते हो, बट आप जो है अकाउंट को क्लोज या ओपन नहीं कर सकते। वो फीचर के जो राइट है वो किसी और के पास है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि यूज़र एक्सेस स्पेसिफायर, यानी यूज़र को कितना एक्सेस मिलना है, किस यूज़र का कितना राइट होगा, ठीक है, प्रिविलेज कितना दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वन वाज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स 2 वर्ड से मिला है। पॉली मतलब जहाँ पे यूज़ होता है प्रीफिक्स में, उसका मतलब होता है बहुत कई, एक से ज़्यादा, एंड मॉर्फ का मतलब फॉर्म। तो जब एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को एक से ज़्यादा तरीके से, एक से ज़्यादा फॉर्म में यूज़ करें तो ऐसी टेक्निक को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया था, एरिया फंक्शन बना लिया। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आप सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाएं, या आपको एक ही फंक्शन एरिया बनाना हो और उसी से सबका काम हो जाए। तीनों आपका जो एरिया कैलकुलेट करना है तीनों डायमेंशंस का, तीनों जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल का, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको फंक्शन के नेम याद नहीं करने पड़ेंगे, और एक से ज़्यादा फंक्शन ना होने से आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर भी यही है कि पर्पज़ भी ये होता है कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। तो इसके क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पे। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा इनहेरिटेंस। इन बायोलॉजी, इट इज़ बायोलॉजिकल टर्म आल्सो। बायोलॉजी में क्या होता है, जब कोई भी पेरेंट से कोई भी पर्सन अपने पेरेंट का जो फीचर्स एक्वायर करता है, कुछ ना कुछ फीचर मिलते हैं पेरेंट्स के, तो उसको बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस, ठीक है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। पहले से कोई आपका क्लास अगर बना हुआ है, उस क्लास की हेल्प से कोई दूसरा क्लास अगर हम बनाएं तो उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, या टेक्निक को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसमें जो पहला से क्लास एग्जिस्ट कर रहा है उसको पेरेंट और सुपर क्लास बोलते हैं, ठीक है, और जो उसके हेल्प से दूसरा क्लास हम लोग बनाते हैं उसको डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। इसको डेराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, डेराइव्ड क्लास, ठीक है, डेराइव्ड क्लास। और ये मेन क्लास होता है, इसको मेन भी बोल सकते हैं, डेराइव्ड क्लास है। और इसको मेन कह सकते हैं या बेस क्लास बोल सकते हैं, इसको बेस क्लास भी कह सकते हैं। तो बेस से डेराइव्ड क्लास, अगर ये पेरेंट क्लास है तो चाइल्ड, सुपर है तो सब, और बेस क्लास है तो इसको डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस
the what is Java and features of Java and how to write the basic Java program. Okay. दिवाकर से आज बात हुई थी बड़ी देर।